I request all the participants to kindly be online. Okay, it is a request to all the participants to kindly be online as sir is joining very shortly. हम लोग मैं उधर खड़ा हो गया, सैटरडे का दिन था। Thank you, sir. Thank you, sir, for joining the event. Thank you, Hope Jay. that Namaskar. yeah, thank. Namaskar, sir.
Myself, Dr. Arvind from the Biotechnology Department. After just the introductory part, we will start this session, and Sure. I will invite you to take over the session. So, shall we start, sir? Yes, sir. Okay. So, welcome to all the participants in today's event. We, on the behalf of Department of Biotechnology and Institute Innovation Council of Noida Institute of Engineering and Technology, are organizing this one-day lecture event, which is on the very subject of Ayurveda, the art of being. As we are well aware of the concept of Ayurveda, which is the oldest healing science, and one can also regard it as mother of all healings. So during this pandemic, I guess that every person, those who are even not aware of these things, they come to learn about the Ayurveda, and they gave birth to the biological research and the Ayurveda. These are the two things, the good things that have happened in the country, and all over the world, the people have recognized the importance of the Ayurveda, the science of healing, the natural therapies, the way we actually live, we should live. So it all emerges from the ancient knowledge that the India is having, and we are fortunate to have with us the eminent speaker today, Dr. Akhilesh Sharma. He is an Ayurvedic physician and consultant with 30 plus years of rich experience. He is practicing this Ayurveda across 19 countries globally. He has also served as advisor Ayurveda to the government of Delhi in the past as well. He is visiting faculty of California College of Ayurveda and University of America, and renowned members of many national international organizations for promotion of the Ayurveda. So without taking much of the time for this event, I would request Dr. Akhilesh Sharma to kindly take over the meeting. Welcome, sir. Welcome to this event, and thank you for joining today's event. Thank you Over to very you, sir. much, Dr. Arvind Kumar ji, Dr. Sujit Kumar Singh ji, and all the August gathering today, and the faculty of the Department of Biotechnology, NIET, and Noida Institute of Engineering and Technology. It's a matter of great privilege for me to be part of this August gathering today. I'm sorry for this little bit of delay because of the technical issues, but thank God we are connected. So welcome all. Before I start my presentation, the way the trend is, I start with a Sanskrit healing mantra, and I'll quickly go through that mantra and then we open the house. Om Bhaishajam Bhaishajam Mahabhaishajam Raja Samud Gate Swaha. This was one of the ancient, most powerful healing mantra. The literal meaning of this mantra or the divine sound is, "O the healer of the healers, the master of the masters, the creator of the creators, the physician of the physicians, you have to prevail, exist forever, forever and forever." This is the meaning of this line, Om Bhaishajam Bhaishajam Mahabhaishajam Raja. And then we say Samudgate Swaha, which means let anything in the form of negativity of thoughts and emotions, negativity of bacteria and pathogens, negativity within me at microcosmos level, and negativity around me in the universe. All of that has to be offered to the holy fire to convert it into positivity. Just the chanting of this mantra, some people have, investigations have revealed under the microscopic examination that even the bacteria and pathogens stop multiplying. This is the impact of the mantra.
as per many of the claimants. So this was a very interesting mantra. I thought I'll just share with you in the beginning. Now, coming to Ayurveda, the very basic principle which says that all of us are made up of 5-element theory, where we say we are made of air, fire, water, earth, and ether. These 5 elements combine in a particular permutation and combination to make 3 vital forces in the body. We call them as Vata, Pitta, and Kapha in Sanskrit. If you compare it with the modern atomic theory, where we say everything is made up of atoms, let us put these 2 theories together now. We say that everything is made up of atoms in modern atomic theory, and here we are saying that we are made of 5-element theory: air, fire, water, earth and ether, जिसको हमने कहा है हिंदी में या संस्कृत में आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी. तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को खोल करके देखें, which contains neutrons and protons in the center, आप सभी बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं. तो उसमें whatever carries weight and mass in the structure of the atom, that is, according to Ayurveda, is the earth element, which is neutrons and protons. Then we say that electron is a charged particle in the atom going around the orbit, circulating. That charge or the inertia or energy or activity, that is the expression of fire energy according to Ayurveda. Agni Tattva hai wo. Then we say that this electron is continuously moving in the orbit. That movement is because of the air element. We say in Sanskrit, Vagati Gandhanyo. The one which moves is the air. That means this is the movement of the electron within the atom is because of the air element. Then we say that there is a distance between neutrons and protons. Neutrons are placed in the center of the atom, and electron is going out in the orbit, and there's a distance between them, between the electron and neutrons. So that distance is the space element, Akash. Then Akash is the one in which all of us also exist. And then we say there's a moisture or humidity content in the atom, which is the expression of water element, Jal Tattva kaha hai. So human body is also made up of all those 5 elements, including consciousness or prana or life force. That's an additional added factor. That's why that is what makes us different from living entities, non-living entities, sorry. तो जीवित और निर्जीवों में क्या फर्क है? कॉन्शियसनेस का, प्राणों का, लाइफ फोर्स, ची, डिफरेंट एक्सप्रेशंस में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में हमने उसको विभिन्न भावों से प्रदर्शित किया है. Now Ayurveda says, Ayurveda, by the way, is the oldest system of healthcare ever existing on this earth. It was not only the oldest system, but it was the oldest documented healthcare system of healthcare on this earth, which has got a 5,000 years old track record. तो इसका मतलब यह है आयुर्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम documented system of healthcare है. Very few people know. कुछ लोग कहते हैं कि साहब चाइनीज मेडिसिन भी पुरानी है. हाँ, भी तो पुरानी है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चाइनीज मेडिसिन इज अबाउट 2,200 years old. But history of Ayurveda is more than 5,000 years old history. So what I'm trying to say here, that Chinese medicine concept also, if you go deep into their history, comes from Ayurveda. They came to India, learned it from universities like Takshila and Nalanda when Oxford and Cambridge were also not even existing, right? And they learned it and took it back to China and later called as Chinese medicine. But originally it comes from Ayurveda. But as usual, Chinese are always smart in cut, copy and paste, and that is what they have been doing. So anyway, I won't go into that controversy, but what I'm talking today here is 5-element theory makes 3 vital forces in the body, Vata, Pitta and Kapha. Vata or air energy, we call it,
is a combination of air and ether element. This is a basic humor in the body, the physiological expression of the elements. Air and ether combine to make something called vata, or air energy, we can say in English. Okay. Second vital force in the body is called pitta, which is fire energy, combination of fire and earth element. Third vital force in the body, which is called dosha or a basic humor, is called kapha. Kapha is a combination of water and earth element. So these 5 elements combine in a particular permutation and combination to make 3 vital forces in the body, and we call them as vata, pitta and kapha. Vata is called as air energy, pitta is called as fire energy, and kapha is called as water energy in the body. तो इस तरह से हमने इसको प्रदर्शित किया है. There is no exact English translation available for the word vata, but just to make it understandable, we call it air energy. Air energy ठीक expression नहीं है, लेकिन English language itself is incomplete. That's why the expression is missing. But just to make it understandable, we call it air energy. ठीक है. Second is pitta, the fire energy. And third is kapha, the force of cohesion. आयुर्वेद कहता है ये 3 forces जब हमारे body में balanced state में रहते हैं तो we are healthy. But whenever they get out of balance, then we get sick. ठीक है. So they go like this, the strings of a guitar, like up and down and up and down and up and down from life till death. ठीक है. So the question is, why do they get out of balance? Why do they go up and down? Because the food which you are eating is also containing those 5 elements. The water we drink is also containing those 5 elements. The air we breathe in is also containing those 5 elements, and the ratio varies. Because of the constitutional ratio, the outcome is it is creating a doshic imbalance within the body. इसलिए हमने उनको दोष भी कहा है. संस्कृत में कहते हैं दुष्यते अनेन इति दोषा. The one which has got a tendency to go out of balance, it is called as dosha. That is why human body decays. That is why human body dies. अगर ऐसा नहीं होता तो ईश्वर में और मनुष्य में क्या फर्क रह जाता है? तो ये शरीर दूषित है, दोषों से युक्त है, इसलिए नश्वर है, इसलिए ह्यूमन बॉडी डाइज. द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड आल्सो डाई वन डे, क्योंकि वो दोषिक इम्बैलेंस एक इरिवर्सिबल सिचुएशन में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बीमारियों की उत्पत्ति होती है और हम कहते हैं कि साहब फलाना आदमी फलानी बीमारी से मर गया, बट आयुर्वेदा वास्टली कहता है कि वो दोषिक इम्बैलेंस से मर गया. पर्टिकुलर दोष की वजह से ही पर्टिकुलर बीमारियां भी होती हैं. तो दिस इज द बिगर क्लासिफिकेशन ऑफ द 3 वाइटल ह्यूमर्स. एयर एनर्जी को हमने एक्सप्रेशन को समझाने के लिए कहा है कि इट सिंबलाइजेस sympathetic and parasympathetic nervous system in the body. Second basic humor is fire energy. The broad expression of fire energy is all kind of biochemical secretions within the body, all kind of hormonal secretions within the body. They are expressing the word pitta or digestive fire or fire energy. Let it be hydrochloric acid secreted from the stomach is pitta, or let it be any of the hormonal secretions is pitta. Let it be pituitary gland secretion, it's pitta. Liver secretion, bile duct secretion, all of them are pitta. Pancreatic secretion, adrenal glands, pitta. Flow of blood, pitta. Fire. Third vital expression is called kapha, which is force of cohesion. It's an expression of water and earth element combination. We say in the modern medicine that 90% of our body is what? Is water anyway, right? तो देखिए कफा एलिमेंट में क्या होता है? फोर्स ऑफ कोहेजन है, लेकिन टिश्यू फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, एक्युमुलेशन, टिश्यू रिपेयर, रीजनरेशन, ग्रोथ, ये फोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो पित्ता है, लेकिन फोर्स ऑफ एनाबॉलिज्म विच मीन्स यू आर रीस्ट्रक्चरिंग, यू आर रीबिल्डिंग, ग्रोथ होती है,
बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसका वर्टिकल ग्रोथ होता है और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होता है ना। ये सारी उस कफ दोष के कारण होती है। तो दिस इज हाउ देयर कैटेगरी और क्लासिफिकेशन और वर्क प्रोफाइल हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन आवर बुक्स। मैं अगर आप चाहें मैं हिंदी में बोलूं या मिक्स करके बोलूं, बट मैं एक्सटेम्पोर अंग्रेजी में बोल रहा हूं। प्लीज रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो हाउ डू यू वांट मी टू कम्युनिकेट। एनीवन हु हैज एनी this thing, is it going okay? या मैं हिंदी में ज्यादा बोलूं सर? नहीं सर, you may use both languages, no problem. आपकी आवाज कट रही है अरविंद जी। Sir, I'm saying that in both the ways it is correct. अच्छा It's ठीक है, okay. Yes. मैं मिक्स करके बोलूंगा, ठीक है, थैंक यू, अप्रिशिएट। अच्छा, अब देखिए इंटरेस्टिंग पहलू है, क्योंकि आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट बी मेनी स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन लाइव ऑन द एयर। आपको आज एक बहुत दिलचस्प पहलू आयुर्वेद की बात करेंगे। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रकृति। आयुर्वेद कहता है ऑल ऑफ अस हैव ऑल दीज थ्री दोषास, वात पित्त एंड कफा, बट द रेशियो ऑफ द थ्री दोषास वेरीज। कुछ लोग ज्यादा वातज होते हैं, कुछ पित्तज होते हैं, कुछ कफज होते हैं, कुछ बायुदोषिक होते हैं, जैसे पित्त वाता, पित्त कफा, कफ वाता और त्रिदोषा। ठीक है, तो some are air fire type, the other could be fire air type also, है ना। So there are 6 types of बायुदोषिक constitutions. एक होती है सिंगल दोषिक also, कुछ प्योर वाता, प्योर पित्ता, प्योर कफा, और कुछ होती है त्रिदोषज, all the three in equal ratio or in a combination. तो तीनों दोष हमारे शरीरों में हैं सभी में, लेकिन उनकी रेशियो वेरी करती है। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर ज्यादातर लोग बायुदोषिक पाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इसलिए देखिए, हम करोड़ों क्या अरबों खरबों लोग हैं इस धरती के ऊपर। हमारी 2 आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं। इन सब के बावजूद, सिमिलैरिटीज के बावजूद भी वी डोंट लुक अलाइक। हम लोग एक जैसे नहीं दिखते, है ना। थोड़ा सा फ्रैक्शंस ऑफ ए डिफरेंस मेक्स ए डिफरेंट बॉडी टाइप। बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है। तो इसलिए बॉटम लाइन क्या है, आयुर्वेद ये कहता है कि दवाइयाँ जो भी हैं हम खाते हैं वो भी टेलर मेड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप में पॉसिबल नहीं है, तो हम थोड़ा कंप्रोमाइज्ड वर्जन कर लेते हैं। इसलिए पुराने ज़माने में जो अच्छे वैद्य थे, वो पेशेंट को देख के उसी समय घोट करके दवाई बना के देते थे, नुस्खा बना के देते थे कि क्या क्या मिलाना है, किस रेशो में, तुम्हारी बॉडी टाइप के अनुसार वो मैं तुमको दूंगा। ठीक है, सो डिजीज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो मेड ऑन द बेसिस ऑफ द दोषास। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग वाता, जो वाता टाइप है ना, वाता टाइप लोगों में वाता इम्बैलेंस की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, यानी नर्वस सिस्टम उनका और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाता से रिप्रेजेंट किया जाता है, वायु से, है ना। तो उनमें क्या होता है, दे वुड बी लाइक लीन एंड थिन, दे आर जनरली लीन एंड थिन लाइक माइकल जैक्सन, दे आर वॉकिंग इन द एयर एंड टॉकिंग इन द एयर। ठीक है, इस तरह की प्रकृति के लोग वातज प्रकृति के होते हैं, दे आर लीन एंड थिन। है पित्ता इज मॉडरेटली बिल्ट, दे आर मॉडरेटली बिल्ट बट हाई एनर्जी लेवल, they are fiery in walks, thoughts and actions, IQ is strong. ऐसे ही कफा जो है, they are elephant like personality. अगर 3 एनिमल्स में कंपेयर करें तो वाता टाइप लोग कैसे हैं, गोट लाइक पर्सनैलिटी, दे आर लीन एंड थिन। ठीक है, अनडिसाइसिव, दे कैन बी इजीली नर्वस एंड एंग्शियस ऑल्सो। तो ज्यादातर वाता डिसऑर्डर्स उन लोगों में होंगे कैसे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पैरालिसिस, ये सब वाता डिसऑर्डर्स हैं। वाता प्रेडोमिनेंट लोगों में ज्यादा पाए जाएंगे। जो पित्ता प्रेडोमिनेंट है, दे आर लाइक ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, लाइन लाइक पर्सनालिटीज, पॉलिटिशियंस, फॉलो मी, कम ऑन गाइस, आई एम द लीडर, है ना। ये पित्ता टाइप कॉन्स्टिट्यूशन है। उनका IQ बहुत स्ट्रांग होता है, कन्विक्शन स्ट्रांग होता है, दे आर गो गेटर्स इन लाइफ। सारे पुलिस सर्विसेज के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, IAS ऑफिसर, ये सारे कौन होते हैं, ज्यादातर आप उनकी बॉडी टाइप एनालिसिस करेंगे तो वो पित्त प्रकृति के लोग मिलेंगे।
लेकिन शॉर्ट टेम्पर्डनेस होती है, उनमें एंगर होता है, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, इट्स ए पित्ता डिसऑर्डर, सोराइसिस है, पित्ता डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, पित्ता डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव इश्यूज, हाई कोलेस्ट्रॉल, पित्ता डिसऑर्डर, फैटी लिवर, पित्ता डिसऑर्डर, बर्निंग इन द आईज, पित्ता डिसऑर्डर। ठीक है, आंखें लाल हो जाती हैं, मैं बाहर जाता हूं तो सूरज की रोशनी में, पित्ता डिसऑर्डर, राइट। ऐसे ही कफा डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंडेबल, एलिफेंट लाइक पर्सनैलिटीज कैसी होती हैं, बिग बॉडी, ब्रॉड शोल्डर्स, बिग मसल्स, दे कैन बी स्लो, लेजी एंड डल, राइट। They have high energy level, but they don't want to use it. They are elephant-like personalities. If they are standing, they want to sit down. अगर वो बैठे हैं तो वो सो जाना चाहते हैं, नहीं बैठे हुए लेट जाना चाहते हैं, लेटे हुए सो जाना चाहते हैं. That is how they act. So it's very fascinating to know what is your body type. बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये. तो इसी पर आज बात करते हैं. नोइंग योर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ए की फैक्टर, जो आज मैं आपको बांटना चाहता हूँ. ये आप साथ लेके जाइए और उसको प्रयोग कीजिए. आप सभी के पास अगर पीस ऑफ पेपर एंड पेन है तो निकाल लीजिए. वी विल डू वन स्मॉल टेस्ट हियर अबाउट नोइंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. कर सकते हैं डॉक्टर अरविंद जी? डज एवरीबडी हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन? यस कर सकते हैं. I अच्छा, hope that everybody is having a pen paper. ये नहीं तो अपने अपने कंप्यूटर में भी नोट कर सकते हैं, बट अगर कागज पेन रहता तो बहुत अच्छा था. और अब यहाँ से आगे आप मेरे को ध्यान से सुनिएगा. मैं आपको दौशिक कॉन्स्टिट्यूशन का एक चार्ट जो मैंने बनाया है, जो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, जिसको आप अपने आप को देख सकते हैं कि आयु इन द कैटेगरी ऑफ वाता और पित्ता और काफा. जो कफ प्रकृति के लोग हैं, ज़्यादातर उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वाटर रिटेंशन, ओबेसिटी है, कंजेशन इन द लंग्स, वाटर इन द लंग्स, एम्फाइसीमा, है ना. जैसे कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों को लंग्स का कंजेशन हो गया, इस वजह से उनकी डेथ होती है, सांस नहीं ले पाते, है ना. तो knowing about the constitution and seeing what is the doshic imbalance within you, that is the key. तो कुछ उसके ट्रेड्स हैं जो हम अपने आप को मार्क्स देंगे टू सी विच कैटेगरी आर वी इन. आर वी मोर वी, पी और के, ऐसे बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए बाय द नेम ऑफ वी, पी एंड के. वी मीन्स वाता, पी मीन्स पित्ता, के मीन्स कफा. और आपने अपने आप में देखने हैं कि जो मैं लक्षण बताने जा रहा हूं आपके अंदर कितने एग्जिस्ट करते हैं. आपने अपने हिसाब से उसको मार्क्स देने हैं अपने आप को. ठीक है. एट द एंड वी विल काउंट हाउ मेनी वीज, पीज एंड केज यू गॉट. उसके आधार पर हमें थोड़ा मोटा मोटा एक आंकलन हो जाएगा कि व्हाट बॉडी टाइप आर वी. ठीक है. अब बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की. फिजिकल फीचर्स में अगर हम बॉडी फ्रेम की बात करें, ठीक है, बॉडी फ्रेम में वाता पीपल आर लीन एंड थिन. ठीक है. पित्ता आर मॉडरेटली बिल्ट, कफा आर हैवी एंड स्टाउट. इसका अपने आप को आपने नंबर देने हैं. डू यू फील, डू यू थिंक यू आर वी, पी और के? 1 मार्क हो गया इसका. ठीक है. नेक्स्ट, अबाउट द बॉडी वेट. वाता इज लो, पित्ता इज मॉडरेट, कफा इज ओवरवेट. आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो 1 नंबर दे दीजिए. समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर. परफेक्ट. अब बात करते हैं स्किन की. वाता टाइप पर्सनालिटीज जनरली दे हैव अ ड्राई स्किन. इट वुड बी रफ, इट कैन बी कूल, कैन बी ऑल्सो ब्लैकिश और ब्राउन. ठीक है. ये वाता टाइप स्किन है. कफा टाइप ना, जो पित्ता टाइप स्किन है, दैट वुड बी मोर सॉफ्ट, ऑयली, warm, fair. It can be sometimes yellowish or reddish in color. That's a pitta type skin. Kapha type skin, it would be thick skin. It will be oily. It can also be cool, but can be more on the pale side or white
and with a little bit of glistening appearance. Glistening, ठीक है। तो ये स्किन के 3 कैटेगरीज हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं आप वाता टाइप हैं, पित्ता टाइप हैं, कफा टाइप हैं। इमेजिन कीजिए स्किन क्रीम्स और लोशंस बनाने हों और वात, पित्त और कफ के आधार पर बनाए जाएं, जो कि बनते हैं भारत में और विदेश में एक्सपोर्ट हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? ब्यूटी इंडस्ट्री में हम रूल कर सकते हैं हमारे आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को ठीक तरह से अपनाएं तो, कि ईटिंग राइट थ्रू योर स्किन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अप्लाइंग द क्रीम अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। हेयर्स की बात करते हैं, बाल। वाता पीपल दे हैव ड्राई हेयर्स, उनके पतले होते हैं, ड्राई हेयर्स होते हैं, ठीक है, रफ होते हैं, दे आर ब्रिटल, इजिली टूट जाते हैं, ब्लैकिश ब्राउन होंगे उनके बाल, ठीक है। पित्ता टाइप पीपल दे हैव सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर्स which are more shiny also, but they have a tendency of early graying, जल्दी उनके बाल ग्रे हो जाते हैं, उनको बाल्डनेस जल्दी आती है पित्त प्रधान लोगों में। दे हैव मोर लाइक ए येलोइश और रेडिश टेक्सचर होता है हेयर का। कफा पीपल दे हैव थिक हेयर्स, लस्ट्रस ग्रोथ, ऑयली, वेवी, इट कैन बी डार्क, थोड़ा ग्लिसनिंग वाइट अपीयरेंस होगी उनकी, ठीक है। अबाउट द टीथ, दांतों की बात कर रहे हैं अब हम। वाता पीपल दे आर इरेगुलर, इरेगुलर होते हैं दांत, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, प्रोट्रूडेड आउट, बाहर निकले हुए, क्रूक्ड टीथ, और दे कैन हैव थिन गम्स, जो गम्स हैं उनके वो पतले होते हैं, ठीक है। उनकी टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स अर्लियर डिके, वात पर्सनालिटी के लोगों के दांत जल्दी गिर जाते हैं, कमजोर होते हैं। पित्त प्रकृति के लोग दे हैव रेगुलर टीथ, मॉडरेट इन साइज, गम्स आर सॉफ्ट एंड पल्पी, है ना, बट येलोइश गम्स, एंड दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ हैविंग ब्लीडिंग गम्स वेरी फ्रीक्वेंटली। कुछ लोग कहते हैं ना कि साहब मसूड़ों से मुझे तो बहुत जल्दी खून आ जाता है, दूसरा आदमी कहता नहीं मेरे दांत तो ठीक है। जो ठीक कैटेगरी है वो कौन सी होती है? सबसे बढ़िया वाली, कफा टाइप। कफा टाइप दे हैव रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, दे आर जनरली वाइट इन कलर, दे आर हेल्दी, ठीक है। दिस इज हाउ यू डिसाइड अबाउट द टीथ। सो यू वांट टू गिव मार्क्स टू योरसेल्फ कि आपके दांत कैसे हैं। अब आगे चलते हैं। आईज, वाता पीपल हैव स्मॉल आईज, they have dull eyes but attractive at the same time. They are brown in color, generally having black color of iris. Iris जो होता है उनका वो black color का होता है। Pitta people have medium size eyes but they are sharp and penetrating, है ना। कई बार कुछ लोगों की आंखों में देख के हमको लगता है ना कि डर लग रहा है, या there is a ray of energy coming through their eyes। वो फिल्मों में भी हम दिखाते हैं सिंबॉलिकली कि रे ऑफ फायर इज कमिंग, वाटर तो नहीं दिखाते, बिकॉज आईज सिंबलाइज द फायर एनर्जी विद इन यू। पित्त का स्थान भी है, इसलिए आपका पित्त अगर कमजोर होगा तो आपकी आई साइट कमजोर होगी। पित्त को बैलेंस करने की दवाइयां शुरू कीजिए तो ठीक काम करती हैं। इसीलिए क्या खिलाते हैं आमतौर पर, दादी नानी क्या खिलाते थे? आंवला। आंखों की ज्योति बढ़ानी है तो आंवला खाइए, ठंडा होता है आंवला लेकिन आइज के लिए अच्छा होता है क्योंकि पित्त को बैलेंस करता है, क्योंकि रॉड्स एंड कोन्स मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी ऑफ द आइज बढ़ाता है। तो पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग पित्ता दे हैव शार्प एंड पेनिट्रेटिंग, जैसे शेर या चीते की आंखें होती है ना। दे कैन बी ग्रीन और ग्रे इन कलर, उनका जो आइरिस होता है दैट इज येलोइश इन कलर। ये अभी हम पित्ता की बात कर रहे हैं। कफा आइज कैसी होती हैं? दे आर बिग, आइरिस इज जनरली ब्लू, दे हैव थिक आई लैशेस, बिग वाटरी आइज, जैसे मछली की आंखें होती हैं वो कफा टाइप आइज हैं, ब्यूटीफुल आइज, है ना, वाटरी बट बिग आइज। अब बात करते हैं जॉइंट्स की। वाता पीपल दे हैव जॉइंट्स जो कि बाहर निकले होते हैं, उनकी बोनी मार्किंग्स हम आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना यार तो बिल्कुल ही
हड्डियों का ढांचा है, तेरी हड्डियां दिखती हैं। हड्डियों का ढांचा क्यों कहते हैं? क्योंकि हड्डियां बड़ी क्लियर विजिबल होती हैं, है ना। उनके ऊपर फ्लैश कम होता है, एडिपोज टिश्यू उसमें कम होता है, पफिनेस कम होती है, गुदगुदापन उनको ज्यादा नहीं लगता, थिन स्किनी होते हैं लोग, वो माइकल जैक्सन की तरह। बोनी मार्किंग्स आर मोर विजिबल if that is kind of joints you have, you are vata personality. pitta type are just visible, थोड़े बहुत दिखते हैं। कफा में they are not seen, क्योंकि ऊपर फ्लैश होता है, काफी पैडीनेस होती है उसमें, ठीक है। कफ लोगों को देखो, आपको उनको हड्डियां नहीं देखेंगे, उनके ऊपर मांस ही मांस दिखता है आपको, ठीक है। ऐसे ही मस्कुलेचर, वाता इज स्लाइट एंड स्टिफ मस्कुलेचर, हल्का और स्टिफ होता है, तना हुआ। पित्ता इज मीडियम एंड फ्लेक्सिबल एंड कफा इज फर्म एंड स्टाउट, ठीक है। अबाउट द एपेटाइट, भूख की अब बात करें तो वाता इज वेरिएबल एंड स्कैंटी, थोड़ी भूख लगती है, थोड़ा खाना खाते हैं, लेकिन वेरिएबल, कभी बोलेंगे हाँ भूख लगी है, कभी बोलेंगे नहीं लगी, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हाँ हाँ दे दो, नहीं छोड़ो मुझे भूख नहीं है, एक ही मिनट में डिसीजन बदल दिया। दे आर अनडिसाइसिव इन एक्शन ऑल्सो, इसलिए कहते हैं नहीं, कभी बहुत भूख लगी है, कभी बिल्कुल नहीं लगी, इर्रेगुलरिटी इन दैट पैटर्न ऑल्सो। For pitta people, they always have good appetite and excessive appetite. हम बोलते हैं जब पित्त व्यक्ति हो, पित्त वाला व्यक्ति हो और लंच टाइम हो गया हो तो उससे बहस मत करो, उससे जीतना है तो चुपचाप भाई साहब को खाना खिला दो। Because when pitta people are hungry, they are angry. The moment you serve them food, food acts like a medicine for them. खाते ही शांत हो जाते हैं, उसके बाद लड़ लो, उनसे लड़ना है तो उनसे पहले लड़ोगे खाली पेट तो वो आप पे अटैक करेंगे भूखे शेर की तरह, ठीक है। तो जो कफा टाइप है, दे आर लो एपेटाइट बट स्टेडी, मतलब कफा एलिमेंट को बोलो भूख लगी है, कहेगा पता नहीं, वेल है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर खाना रख दिया, भाई साहब अभी तो कह रहे थे नहीं कोई खास भूख नहीं है, खाना शुरू किया तो वो नॉन स्टॉप खाते रहते हैं। कई बार उनको रोकना पड़ता है कि भाई बहुत हो गया, और नहीं, घर में मां डांट देती है, घर में तो मां डांट सकती है, बाहर बैठे हैं तो बोलेंगे यार ये सोशल एटिकेट्स के खिलाफ है, लेकिन जिसको पता है कि इस व्यक्ति की प्रकृति ही कफज है तो मोटा भाई खाता रहेगा, और इसलिए उसको रोक दो, राइट। सो देयर एपेटाइट इज लो बट वंस दे स्टार्ट दे कंटिन्यू। उनको ये नहीं पता लगता कि यार कितना कम खाना और ज्यादा खाना क्या होता है, बोले आ रहा है तो आने दो, कोई बात नहीं चलने दो, तो उनको कहना पड़ता है कि नहीं भाई बहुत हो गया, देन दे स्टॉप। सो यू सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज टू कनेक्ट विद दीज फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स इन इंडिविजुअल्स लाइफ। अब अगर बात करते हैं थर्स्ट की, प्यास की, वाता पीपल दे आर वेरिएबल, कभी बहुत ज्यादा प्यास लगी है, कभी नहीं लगी। पित्ता पीपल इज एक्सेसिव, हमेशा प्यास लगती है, पानी अच्छा पीते हैं, जब भी पिला दो पानी पीना, हाँ जी दे दो, या प्यास उनको ज्यादा लगती है। एंड कफा पीपल दे हैव लो थर्स्ट बट स्टेडी, वही बात है, अच्छा पानी है तो दे दो, और पिए हैं तो पिए ही जा रहे हैं, या उनको कह दो बस भाई साहब हो गया तो कहते हैं अच्छा ठीक है, राइट। दे आर लो बट स्टेडी। अच्छा, अबाउट द स्वेटिंग, वाता इज वेरिएबल, कभी बहुत स्वेट आएगा, कभी नहीं आएगा। पित्ता इज एक्सेसिव स्वेटिंग, कफा इज लेस स्वेटिंग। अबाउट द स्लीप पैटर्न, हर एक को मार्क्स देते जाइए अपने आप को। स्लीप, वाता इज स्कैंटी एंड इंटरप्टेड स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप रहती है उनकी, क्योंकि नर्वस और एंक्शियस ज्यादा रहते हैं। पित्ता इज मॉडरेट, 4 to 6 hours sleep is there, but it is slightly disturbed. Kapha is heavy sleepers, more than 6 to 8 hours they want to sleep, के नहीं उठाओ मत, और सोना है, ठीक है। They have a good sound sleep also, snoring भी उनमें सबसे ज्यादा मिलेगी। About the taste, Vata people love sweet, sour and salty taste, कहेंगे कि मीठा खिला दो, खट्टा खिला दो, गोलगप्पे खिलाओ खूब सारे तो खा लेंगे। लड़कियां जो गोलगप्पे खाती हैं वो सबसे ज्यादा वाता पर्सनालिटी में मिलेंगी। सॉल्टी भी चीजें उनको पसंद है, चटपटा और सॉल्टी सब पसंद है, मीठा भी पसंद है।
पित्ता पीपल दे ऑल्सो लव मीठा, ठीक है, और बिटर चीजें उनके लिए उनको पसंद है, जो कड़वी हो वो खा लेते हैं आराम से, करेला है दे दीजिए कोई बात नहीं, कसैला चीज है तो खा लेंगे, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वो सब खा लेते हैं। कफा पीपल दे लव मोर ऑफ द पंजेंट स्मेल्स, जैसे कई बार रॉटन एग की स्मेल होती है ना, कुछ पंजेंट ऐसा कुछ जैसा होता है, लेकिन कड़वी चीजें भी उनको पसंद है। अबाउट द एलिमिनेशन, जब आप इवैक्यूएट करते हो, लेट्रिन सुबह जाते हो आप मल निष्कासन करने, तो वाता इज वेरी इरेगुलर, वो बोलता है कभी कंस्टिपेशन है, कभी लेट्रिन आई ठीक से, कभी नहीं आई, और उनका जनरली स्टूल इज हार्ड एंड ड्राई, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है, कब्ज रहता है उनको ज्यादा। पित्ता टाइप पर्सनैलिटीज दे हैव ए रेगुलर, मतलब वो रेगुलर स्टूल पास तो करते हैं, but it is more on the soft side and more oily in nature and more loose in nature. देखिए हम कैसे, हम आप बोलेंगे यार डॉक्टर साहब क्या आप किस चीज की बात कर रहे हैं, स्टूल्स की बातें लेकर के बैठ गए हैं, बट आयुर्वेदा टॉक्स a lot about those shitty things. Why it is important? Because the quality of shit, quality of stools you are passing is telling you the outcome of quality of assimilation in the body. So it's very very important to understand कि आपका टॉयलेट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, खुल के हो रहा है, बंधा हो रहा है, स्मेल कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है, स्टिकी है या नॉन स्टिकी है, उसमें म्यूकस तो नहीं आ रहा है। तो पित्ता इज मोर रेगुलर, सॉफ्ट एंड ऑयली एंड मोर ऑन द लूजर साइड। कफा इट इज मोर बाउंड, इट इज मोर रेगुलर, इट इज मोर ऑयली साइड। इस तरह का स्टूल पास होता है। फिजिकल एक्टिविटी में वाता इज फास्ट एंड वेरी एक्टिव, जैसे जो स्लो रनर्स होते हैं ना, फुदक के भाग के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। मिल्खा सिंह साहब, ट्रिब्यूट टू हिम, सैल्यूट टू हिम, ही लेफ्ट द कंट्री, ही लेफ्ट द वर्ल्ड दो, बट ही वाज वेरी फास्ट, राइट, एंड वेरी एक्टिव, अलर्ट। वाता टाइप पर्सनैलिटीज जो हल्के बदन के लोग होंगे, छरहरे बदन के लोग होंगे, वाता टाइप पर्सनैलिटीज होंगी, दे विल बी वेरी फास्ट इन रनिंग। पित्ता इज मीडियम, जैसे हिरन बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, लायन जो है हिरन से तेज दौड़ता है नहीं, हिरन से थोड़ा धीरे दौड़ता है, ठीक है, मीडियम, लेकिन उसका स्टेमिना क्योंकि ज्यादा है तो थोड़ी देर में हिरन को पहले भगा भगा के थका देता है, तो हिरन का स्टेमिना कम रहता है इसलिए वो रुक जाता है, तो जाके लायन उसको पकड़ लेता है। जो कफा पीपल हैं, दे आर वेरी लेथार्जिक एंड स्लो। So vata is fast in physical activity, pitta is medium, and kapha is lethargic and slow. Next point, sexual vitality. In vata people it is lower, it is variable, unpredictable. Sometimes they have a good sex drives, the other times they don't have it at all. Pitta people is moderate always, and kapha is good. About the pulse, vata people have a pulse which is thready in nature, बल्कि हल्की सी मिलेगी, जैसे सांप चलता है ना, स्नेक की मूवमेंट होती है, थ्रेडी एंड वीक पल्स। पित्ता इज जंपिंग पल्स, लाइक ए फ्रॉग लाइक मूवमेंट। वाता में क्या होता है, स्नेक लाइक मूवमेंट है, पित्ता में क्या है, जंपिंग लाइक, ठक ठक, ऊपर गिरा के नीचे, जैसे ईसीजी वेवलेंथ चलती है ना, आप ईसीजी देखें तो पित्ता टाइप पल्स आपको दिखाई देती है। आप नाड़ी पर, अपने ही नाड़ी पर हाथ रखेंगे तो आपको फिंगर को वो प्रेशर मारती है नाड़ी, बिकॉज ऑफ द पल्सेशन इन इट, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन देयर। जो कफा टाइप होती है वो स्वान लाइक मूवमेंट है, ऐसे इमेजिन कीजिए। पुराने टाइम में ग्राफिक चार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी तरह से उन्होंने उन किताबों में समझाया। वाता इज स्नेक लाइक मूवमेंट, पित्ता इज फ्रॉग लाइक जंपिंग मूवमेंट, एंड कफा इज स्वान, जैसे हंस जो है समुद्र पर या नदी में तैर रहा होता है, ऊपर नीचे धीरे धीरे। इट इज मोर ब्रॉड एंड स्लो, ठीक है, इस तरह की पल्स होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थोड़ा सा बात करेंगे। ड्रीम्स जो होते हैं, वाता में फियरफुल ड्रीम्स आए, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आप देखो, जंपिंग चीजें देखो, रनिंग, ये सब उनको सपनों में दिखाई देता है। पित्ता पीपल दे सी मोर ऑफ अ फियरी ड्रीम्स,
लॉट ऑफ पैशन, एंगर, वायलेंस, ये सब दिखाई देगा, मार धाड़ उसमें दिखाई देगी, वार टाइम्स के युद्ध हो रहा है, ऐसा कुछ उनको दिखाई देगा। इस तरह के सपने आते हैं, वो पित्ता पर्सनालिटीज हैं। कफा पर्सनालिटीज में दे सी लॉट ऑफ वाटर, वाटरी ड्रीम्स, कि हम समुद्र में तैर रहे हैं, वाटर बोट में घूम रहे हैं, rivers and oceans will be visible. They see more romantic dreams also, and they are swimming. इस तरह के सपने उनको लोगों को आते हैं। और इसी तरह से इमोशनल टेम्परामेंट में अगर हम देखें, जो वाता पीपल आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, दे कैन बी इजिली एंशियस, इजिली नर्वस। पित्ता टाइप पीपल, दे आर इरिटेबल, they are aggressive, they are short tempered, they are greedy, they are jealous, my way or highway, ऐसा एटीट्यूड रहता है इनका। ठीक है, ये मेंटल टेम्परामेंट की बात है, इमोशनल टेम्परामेंट की बात। कफा पीपल, हाउ आर दे आर मोर काम एंड क्वाइट। ऐसे जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बार एक शेर और एक हाथी साथ में बैठे थे, तो शेर कहता है आई एम द बॉस, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, है ना, दिस इज हाउ ही एक्ट्स। हाथी पास में सो रहा था, वो कफा टाइप पर्सनैलिटी है। शेर क्या है, पित्ता पर्सनैलिटी है। शेर को ईगो बहुत है, वो जाता है पहले हाथी को स्क्रैच मार के आ जाता है। हाथी वेक्स अप, बोले यार मेरे को तंग मत कर। तो शेर कहता है देखा, मुझसे डर गया, अरे आई एम किंग ऑफ द जंगल, आई एम द सुपरमैन। फिर वो दोबारा उसको छेड़खानी करता है, जाके 10-11 बार वो छेड़खानी करके उसको स्क्रैच मार के अपने पंजे से उठाता है। हाथी बार बार कहता है यार देख, मेरी स्किन इतनी मोटी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे स्क्रैच से, मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि मेरी नींद खराब मत कर, मैं सो रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू इवन टर्न माई नेक टूवर्ड्स यू टू स्कोल्ड यू। तेरे को डांटने के लिए मैं अपनी गर्दन भी नहीं हिलाना चाहता, तो तंग मत कर। शेर हर बार सोचता है यार देखा, मेरे से डरता है ये, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाथी हैज लॉट ऑफ एनर्जी, इवन मोर देन लायन। फिर 11वीं बार जब वो नहीं मानता, तो हाथी जो है ना, वो खड़ा होकर के एक टांग से उसकी गर्दन पे रख के उसकी गर्दन दबा देता है और शेर मर जाता है। बाद में हाथी का रिएक्शन क्या है? हाथी बहुत इमोशनल है, कंपैशनेट है, वहीं बैठ के रोना शुरू कर देता है खुद ही। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी माय फ्रेंड, व्हाई डिड आई डू दिस। मैं मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन तू मान ही नहीं रहा था यार, मुझे तेरे को मारना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि तू समझ नहीं रहा था कि मेरे को तंग नहीं करना। राइट, दैट इज द एलिफेंट पर्सनालिटी। तो हर पर्सनालिटी ट्रेट में कुछ अजीब अजीब गुण और अवगुण है, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन और गुड और बैड अबाउट एनी बॉडी टाइप। उस पर हम अभी बात करेंगे। अबाउट द फेथ, ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रेट है। फेथ में क्या होता है? वाता इज चेंजेबल फेथ। वो कहेंगे अच्छा मैं आज ये करूंगा, नहीं 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 मैं वो करूंगा, मैं इस भगवान को मानता हूँ, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, वो दूसरे भगवान को मानता हूँ। दैट इज हाउ they are changeable in the faith part. Pitta is determined, they can be fanatics also, जिसको फॉलो कर लिया उसको फॉलो करेंगे, और सही हो या गलत हो, कल हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही करेंगे। पित्ता टाइप पर्सनैलिटीज। थर्ड बॉडी टाइप, जो कफा जो लोग होते हैं, उनका जो फेथ होता है वो स्टेडी होता है, वो किसी से जुड़े हैं तो श्रद्धा से जुड़े हैं, पूरी तरह से जुड़े हैं, जल्दी उसको डेविएट नहीं कर सकते। इसके अलावा मेमोरी, इन वाता टाइप पर्सनैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए खासकर, उनकी रीसेंट मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन रिमोट मेमोरी पुअर होती है। पुरानी बातें उनसे पूछ लो, कहते हैं अरे वो तो मुझे याद नहीं, अभी की फटाफट याद कर लेंगे, हाँ हाँ रट्टा मारा तो याद हो गया। कुछ दिन बाद पूछो भाई वो रट्टा वाला जो याद किया था वो तो यार मैं भूल गया। दिस इज हाउ दे आर, इजी टू फॉरगेट, ऐसी चीजें करते हैं। जो पित्ता टाइप पर्सनालिटीज हैं, दे हैव शार्प मेमोरीज, दे डोंट इजीली फॉरगेट, इसलिए इजीली वो फॉरगिव भी नहीं कर पाते। ठीक है, वो उनका बिहेवियर में है। काफ़ी सारे क्रिमिनल कैटेगरी के लोग भी ऐसे ही निकलते हैं, जिन्हें कहते हैं बेटा तुमको याद रखूंगा, एक दिन बदला जरूर लूंगा, वो दिल में रख लेते हैं, और अपनी उस एग्रेसिव अप्रोच के कारण वो डरते नहीं और एक्शन भी कर डालते हैं, चाहे वो जुर्म की अवस्था में हो, जुर्म कर दिया हो, then they get imprisoned for that, क्यों? because they could not control their anger and rage. जो कफा टाइप पर्सनालिटीज हैं, they have a slow memory but prolonged,
विच मीन्स सीखने में भी धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जब परमानेंट सीख गए तो उसको याद रखते हैं, फिर उसको जल्दी भूलते नहीं है. This is about their memory. About the interests, Vata people love to do recreation. They do dancing, they do running, intellectual activities, talking. They can be good sculptors. They can be good novelists. Writers अच्छे हो सकते हैं, architect अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि imaginative होते हैं, creative होते हैं. Vata type personalities. Pitta type personalities कैसी होती हैं? They are competitive. They are very good in competitive ventures, sports में, athletics में, debate में, politics में, hunting में, शिकार करना है, चलो चलें. पॉलिटिक्स में चलो जी नेतागिरी करने चलें. ठीक है, वो एटीट्यूड है उनका. जो कफा टाइप, इसलिए यू सी these things reflect in your career also, even in your relationships too. So it's a very important aspect of knowing about your constitution or body type. जो कफा टाइप पर्सनालिटीज हैं, दे आर मोर इनटू फैमिली एंड सोशल गैदरिंग्स, दे आर मोर इनटू फॉर इंस्टेंस कुकिंग, दे आर इनटू कलेक्टिंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स. कफा टाइप पर्सनालिटीज ऐसी होंगी, अच्छा ये ढक्कन खोल लिया ना बोतल का, तो नहीं फेंकते नहीं बोतल को, मैं ऐसा करता हूँ ढक्कन भी बचा है, खाली बोतल टूट गई तो ढक्कन रख लेता हूँ, कभी और कहीं काम आ जाएगा, संभाल के रख लेता हूँ. You know, that's how they are. They will be collecting things. उनको प्यार होता है चीज़ों से, वस्तुओं से, materialistic चीज़ों से भी. But they are very compassionate. They are giver and forgiver also, psychologically. तो ये हमने अभी एक चार्ट तय किया. I want all of you to give marks to yourself to see how many marks you get for each constitution. Are you more V, P or K? ये आपने खुद डिसाइड करना है, और उसके आधार पर आप मोटा मोटा समझ लीजिएगा कि वही आपकी मूल प्रकृति है. ठीक है डॉक्टर अरविंद, कितना टाइम है और हमारे पास? Sir, we don't have much time since at 5 o'clock we have to leave the college. Yes, we have to sum up. Yes. Fine. So, did everybody took the test? Maybe Yeah, I guess so. ओपन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो तो क्विकली हम लोग ले सकते हैं. Let's unmute everyone and let me take some live questions. सभी को कह दीजिए बेशक अनम्यूट कर लें सभी अपने आप को. Okay, I think Manoj Singh Bhati is one of the student. He wants to ask something. Manoj and rest of the student, kindly raise your hand before asking the question so that I can name the one who will ask the question first. So Manoj, you may ask the question. Sir, actually I completed the test and I got to know that I am more of a pitta and then kapha. Okay, so then your body type is pitta kapha. It's a combination of two. उसमें Yes, पित्त हमेशा predominant रहेगा, followed by kapha. Yes sir. It's more of the pitta type. हाँ, it's more of the pitta type. तो आपने अपनी लाइफ में पित्ता बैलेंसिंग चीजें ज्यादा खानी है तो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि फूड एंड मेडिसिन आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. ये हमें समझना चाहिए. आप लोग बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट है ना, तो जो फूड को हम मेडिसिन मानता है आयुर्वेद शुरू से, वो कहता है ये दो अलग चीजें नहीं है, इट इज द सेम थिंग. द फार्माकोलॉजी ऑफ द बॉडी फॉर द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन एक्चुअली. यस सर. किचन फार्मेसी ही आपकी सबसे बड़ी फार्मेसी है, जिसके मसाले, जिसकी सब्जियां, दालें, जो भी चीजें आप खाते हैं वो सब आपके शरीर को जाकर के लगता है, और वो बैलेंस फूड होगा तो बॉडी बैलेंस रहेगी, इम्बैलेंस फूड होगा तो बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी. तो इसलिए आयुर्वेदा जो है ना प्रिवेंटिव हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देता है कि आप बीमार ही क्यों पड़ो, तभी डॉक्टर के पास क्यों जाओ भाई. पहले से ही आपको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर इस तरह के लेक्चर्स दिए जाएंगे ताकि आप कैसे ठीक रहो, तो आपको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन इससे आपको बिजनेस नहीं मिलता. फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो बिजनेस है वो आहत होता है. इसलिए कोई ये चाहता नहीं कि लोगों को हम नेचुरल मेडिसिन के बारे में पढ़ा दें ताकि लोग पौधे घर में उगा के आधी बीमारियां खुद ठीक कर लें. ये इतना सरल है. हम सोचते हैं जो डॉक्टर वही है जो मेरी बीमारी ठीक करे, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ठीक करे, वही ले रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम खुद क्यों नहीं लें भाई, राइट? सो आयुर्वेदा का ये बहुत खूबसूरत पहलू है. और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन मेरा ही है. मैं जानना चाह रहा था, आई हैव आल्सो कैलकुलेटेड दिस एंड आई एम कमिंग मोर टुवर्ड्स कफा.
and Right. then both of the Vata and Pitta are equally distributed, but more it is Kapha. राइट अब देखिए ये जो चार्ट हमने बनाया है ना, ये मोर और लेस आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता है। कई बार थोड़ा सा इनकरेक्टनेस भी हो सकती है, इसलिए आपको क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन की या डॉक्टर की जरूरत होती है, जो आपको और ज़्यादा प्रिसाइज आपकी नाड़ी को देखे, उसमें लक्षण देखे कि कौन सी ये नाड़ी वाता है, पित्ता है या कफा है, और आपके सिम्टम्स जो मिल रहे हैं उनके साथ को रिलेट करके फिर स्ट्रैटेजी करे प्लान के क्या देना चाहिए जिससे आपके तीनों दोष बैलेंस रहें, जिससे आपकी वाता भी नहीं बढ़े लेकिन पित्ता को भी बैलेंस कर ले। तो जैसे आपने कहा अरविंद जी के कफा इज प्रिडोमिनेंस इन यू, तो कफा के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? कफा के लोगों को औरों से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के रखनी चाहिए। अगर उनका शरीर भारी है और तो उनको ईट 75% ऑफ एपेटाइट वाला रूल अपनाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है जितने की भूख है उसका 75% खाना है। Okay. ठीक है। इसके अलावा कफा लोगों को हैवी फूड्स नहीं खाने, जैसे उड़द की दाल है, स्लाइमी है ना, केला है, वो स्लाइमी फ्रूट है, वो ज़्यादा नहीं खाना, जूसी फ्रूट खाना है। हैवी फ्रूट्स जो हैं स्लाइमी नहीं खाने। उड़द की दाल है, भिंडी है, अरबी है, गोभी है, कटहल है, ये सारे कफ के लोगों के लिए कम खाने चाहिए। उनको क्या खाना चाहिए ज़्यादा? घी या तोरी, कद्दू, हल्की चीज़ें। Yes, sir. ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए उनको। अगर तरबूज पड़ा है और आम पड़ा है तो तरबूज खा लेना चाहिए, खरबूजा खा लेना चाहिए। ये नहीं कि सब अनार और आने दो ना, मतलब केला बहुत ज़्यादा नहीं खाना है उनको। ठीक है। Sir, one more query that I have. यस। I just wanted to know what is the relation of the three doshas to the genetics of a person. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे यहाँ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ट्रेड्स जो बताए हैं, इसके अलावा आनुवांशिक बीमारियां, आनुवांशिक कैटेगरी में भी बहुत बड़ी एक एनलिस्टेड वो है बीमारियों की। पूरा एक फॉर्मेट है जिसमें कुछ बीमारियों के नाम हैं कि वो वंशानुगत भी आपके अंदर चल सकती हैं। तो उसमें हम मानते हैं कि जो दोषिक इम्बैलेंस हुआ है ना, इंटरमिंगलिंग जो थी, वो सीवियर इंटरमिंगलिंग हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से ठीक वो नहीं होते बैलेंस, कि वाता हैज गॉट डीप रूटेड इनटू पित्ता और इनटू कफा एंड देयर हैज बीन अ सीवियर इंटरमिंगलिंग। जैसे हम कहें कि दूध में कॉफ़ी और ऑरेंज जूस में भी मिला दिया, तीन चीज़ें मिला दी और अब हम तीनों को अलग कर लें तो वो अलग नहीं हो पाती ना, तो वो एक नई केमिस्ट्री इंटरमिंगल होके, तो वो सीवियरली कॉम्प्लेक्स्ड जो डिजीज प्रोसेसेस हैं जो दोषिक इंटरमिंगलिंग से हुए, उसमें काफ़ी सारी रीजंस लिखे हैं। कुछ तो कार्मिक रीजन भी लिखे हैं उसमें, पूर्व जन्म के कर्मों से चले आ रहे हैं, ऐसा भी आयुर्वेद कहता है। लेकिन उसके अलावा इंटरमिंगलिंग ऐसे है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ADD और ADHD जैसी प्रॉब्लम्स, सेरिब्रल पाल्सी जैसी प्रॉब्लम्स, ये हमारे अनुवांशिक विकारों से इस ढंग से जुड़ी हैं कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन मेन और वुमेन का आपस में रिलेशनशिप में कॉर्डियलिटी और एम्बियंस कैसी थी उस समय, विच मीन्स जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, क्या होता है, अगर हस्बैंड आया है, ही इज ड्रंक दैट डे एंड ही केम बैक होम एंड ही वांट्स टू स्लीप विद द वाइफ एंड वाइफ सेज नो, उसका मन नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस दिन संबंध जो बन गया और उनको पता नहीं लगा अनकॉन्शियसली कि विलिंगनेस नहीं थी, हस्बैंड की तरफ से एक फोर्सफुल एक्ट था, शराब के नशे में दे स्लेप्ट टुगेदर एंड शी गॉट प्रेग्नेंट दैट नाइट। ठीक है। अब इसको कई साल बाद जब पता लगा भी अच्छा आप प्रेग्नेंट तो हो गई, ये तो 1 महीने में पता लग गया, फिर उसके बाद कैरी ऑन की प्रेगनेंसी। तो जिस वातावरण में बच्चा पैदा हुआ उसका असर बच्चे पर आता है, और वो उसकी साइकी हम देखते हैं, अरे बच्चा हाइपर एक्टिव है, ADD है, उसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, या ADHD है, या एग्रेसिव बिहेवियर है बच्चे का, शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, नर्वस सा रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्चुअली व्हेन वी प्लान टू हैव अ चाइल्ड इन अवर लाइफ। हमारे यहाँ इसके पीछे एक पूरा संस्कार होता था कि जब हम अपने जीवन में
बच्चे को लाने के लिए तैयार हैं तो उसमें पुंसवन संस्कार विधि है जिससे वो जेनेटिक रोग ना हो। और उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि हे ईश्वर, अब हम पति पत्नी के रूप में अपने जीवन में नई आत्मा को लाने के लिए तैयार हैं। वो जो नया जीव आएगा उसके लिए हमें सात्विक भाव दो, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, और उस प्रार्थना के बाद वो उसको एक खाली सेक्सुअल एक्ट फॉर फिजिकल प्लेजर की तरह लेकर के नहीं चलते, उसको ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेकर चलते हैं कि परिवार के प्रति हमारी जो अब जिम्मेदारी है ना, उसको निभाने का समय आ गया दोनों का, पति का पति के रूप में, पत्नी का पत्नी के रूप में, ताकि दोनों का संयोग हो जो बिल्कुल सात्विक हो। उसमें भोजन सात्विक भी जरूरी है, ये नहीं कि दारू के नशे में ही होगा जी फिजिकल एक्ट, क्योंकि वो तो सिर्फ सेंसरी प्लेजर के लिए हो गया, ऐसा नहीं। उस एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट समझना है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जब बच्चा पैदा होता है ना, जब आप उन सात्विक भावों को फॉलो करते हो तब आप देखते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो भगवान का रूप है, ये तो बच्चा माँ बाप की बड़ी सेवा करता है, श्रवण पुत्र पैदा हो गया हमारे परिवार में, पता नहीं कैसे आ गया, राइट। वो पता नहीं पता बताने वाला कोई नहीं था, जिसने जाने में कर लिया, सुन लिया, इधर उधर से चला गया। जैसे मैंने आज वेबिनार में बता दिया, जिन बच्चों ने सुना उनको ये पता लग जाएगा आज कि भाई एक हमारे जनरेशन में कोई भी बच्चा जब आएगा तो इस बातों के बारे में मुझे वैद्य जी से लेना है ज्ञान, ये डॉक्टर शर्मा से लें या कहीं से भी लें, किसी और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से लें, यू गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड। और इस बात पर सफल परीक्षण हुए हैं जी। Sir, I have a question. या प्लीज गो अहेड। Yeah. सर एक्चुअली क्या है, ये जो दोषाज है, वाता पित्त एंड कफा। हाँ जी, हाँ जी सर, ये एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, एयर वाटर फायर अर्थ एंड, अब ये जो सर एलिमेंट है, इन्हीं के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना दोषाज भी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये दोषाज हैं, ये मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, पर अगर कोई पिता नेचर का है एंड वो एक्सेसिव वर्कआउट करे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव करे, स्किनी हो जाए, पूरा श्रेडेड हो जाए, तो क्या वो वाता पर्सनैलिटी में आ जाएगा? नहीं, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आपका समझ गया। आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी मूल प्रकृति हमेशा एक सी रहती है, फ्रॉम लाइफ टिल डेथ, ठीक है, वो कभी नहीं बदलती। वी आर बॉर्न विद दैट प्रकृति, क्योंकि जब स्पर्म और ओवम मिले थे ना फर्टिलाइजेशन के समय, उनके अंदर भी वो 5 एलिमेंट्स थे, तो उस रेशो में जिसमें वो कॉम्बिनेशन हुआ उसके हिसाब से ही आपकी प्रकृति बन जाती है। मूल प्रकृति कभी नहीं बदलती। थोड़ा बहुत हेर फेर 19-20 का आप कर सकते हो कि बहुत ज्यादा कफा है तो आपको पता है भाई सब कफा को कंट्रोल करना है तो मैं वेट घटा लूं, ठीक है, थोड़ा बहुत वो वेट घटा के चल जाएगा। बहुत ज्यादा वो सोचे मैं बिल्कुल माइकल जैक्सन बन जाऊंगा तो कभी नहीं होगा। इसलिए जो लोग आपको कहते हैं ना कि आइए वेट लॉस क्लिनिक में आपका गारंटी इतने % घटा देंगे, उनसे ये पूछिए क्या ये गारंटी लाइफ लॉन्ग है? वो कहेंगे नहीं नहीं वो तो कोई गारंटी नहीं है जी, वो तो आप दोबारा खाना शुरू कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि वो आपकी प्रकृति में है। तो Yes, वो sir. तो अपना टेम्पररी गेन के लिए आए, अपना पैसा लिया, आपको थोड़ा रिजल्ट दिया और थोड़ा थोड़ा ही रिजल्ट देंगे, तो Yes, sir. 100% गारंटी नहीं लेंगे, ऐसा होता है। तो प्रकृति बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन नेवर चेंजेस। सो बट हमें ये समझना है कि देयर इज नथिंग गुड और बैड अबाउट ए पर्टिकुलर प्रकृति। जैसे आप हो उसको कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मत जियो कि भाई मैं जो है श्रीदेवी, कोई भी हीरोइन कैसे बनूंगा स्लिम में, कोई भी लड़की भी ऐसा ना सोचे कि अगर मैं मोटी हूं तो बिल्कुल पतली कैसे हो जाऊं। डोंट बी ऑब्सेसिव अबाउट दैट। Okay, thank you, sir. जी, और किसी का प्रश्न है तो पूछिए। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग हिना कहो। गुड इवनिंग। आई आल्सो लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस आयुर्वेदा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो मैं पढ़ती रहती हूँ इन सब में। तो मैंने देखा था कि एक होती है आपकी मूल प्रकृति और एक होती है आपकी उस वक्त लाइक टेम्पररी आप क्या फील कर रहे हो, और एक आप यूजुअली क्या फील करते हो। तो उसके बेसिस पे वो जो टेम्पररी प्रकृति होती है वो वेरी करती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने स्किन की बात की, टेक्सचर की, ऑयली एंड ड्राई। तो एग्जांपल दे रही हूँ कि अब मेरा जो मूल प्रकृति है वो ऑयली है, बट देन समटाइम्स बहुत ही कम
ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, तो उस वक्त क्या मेरा वो जो टेम्परेरी प्रकृति है वो चेंज जाती है? लाइक यूजुअली मेरी पित्त बातें है। मैं आपको बताता हूँ, जो टेम्परेरी प्रकृति है उसी को हमने विकृति कहा है, ठीक है? वो विकृति है, आप मूल प्रकृति की ओर दोबारा जाने का आपका टेंडेंसी हमेशा रहती है, तो उसको आपको टाइम टू टाइम बैलेंस रखना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा वो एक्ट, तब वो बैलेंस रहेगी। ओके जी। Any other question? जी, मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने इसको बड़े ही ध्यान से सुना है, सभी ने, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज बोथ हैव अटेंडेड दिस, and it is the one thing I must acknowledge this, that I was awaiting for this classification, because Vata, Pitta, Kapha, we used to heard these three doshas, but as far as the physiology of the person is concerned and its activities and the behavior is concerned, we hardly could relate those things to these three doshas. So from this lecture, I think this is one of the best knowledge we got today. And since time is limited, I wish we could have more time to listen to sir. And I would request again, sir, to give us time again and make some elaborated discussion again on this topic. So for today, again, thank you so much, sir, for giving your precious time for us and enlightening us about the Ayurvedas and the three doshas and the prakriti of the human beings. Definitely, all the students will get benefit of this, and not only this thing will help the students, but they may guide the people at home, and they will see the things around, what kind of things they are eating, or what kind of activities they are indulged in. So they will try to balance each and everything in their life, and then they can live more happily than Right. ever before. I would Thank you say so all much, the sir. students can keep in touch with me, those who want. मेरी एक वेब पेज है ayurvedatoday.org, www.ayurvedatoday is one word .org, या डॉक्टर अखिलेश शर्मा के नाम से फेसबुक पे कई जगह आपको मिल जाऊंगा। हाँ, तो मुझे लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है +91 9810 360 372। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, +91 9810 360 372, या डॉक्टर अखिलेश शर्मा लिखिए फेसबुक पे, या www.ayurvedatoday.org। मेरा मिशन है ये, टू गेट इट टू मासेज एंड टेकिंग आयुर्वेदा टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सो दैट आज के युवा वर्ग इस देश का जो है ना, हमारी कल की ताकत बनने वाला है, ये हमें दिखाई दे रहा है। उनको आयुर्वेदा के हाथ से अच्छा स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत जो हमने बनाना है ना, वो आयुर्वेदा के परसेप्शन से ही बनेगा। ये हमारी सारी विधाएं जो थी ना, इनकी वजह से हम लोग जगत गुरु कहलाते थे, ऐसे नहीं थी, कहानियां नहीं थी वो, है ना। सो आज पूरा वर्ल्ड इसका लोहा भी मान रहा है। कोरोना ने उनको सिखा दिया है कि देखो, अमेरिका तक में सारे वेजिटेरियंस बच गए, जो हिंदुस्तानी थे ना, जो मसाले खाते थे देसी तरीके से, वो सारे बच गए। अमेरिकन को बहुत ज्यादा हुआ कोरोना फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में हमारे हाथ कमी क्या थी, हमारे पास एक पैथोजेंस था जिसका नाम है इनडिसिप्लिन। हम मॉल्स में भी जाएंगे, मास्क भी नहीं लगाएंगे, भीड़ में भी जाएंगे, मेलों में भी जाएंगे, हरिद्वार भी जाएंगे, तो अब उसके बाद हम वो सारा इधर उधर बांटेंगे। सो डिसिप्लिन हैड बीन ए मेडिसिन, ये हमको समझना होगा जरूर। एंड वी हैड ए बिटर एक्सपीरियंस, उससे हमें कड़वा वो यथार्थ का तो अनुभव हुआ ना, हजारों क्या लाखों जाने चलेंगी पूरे विश्व भर में। तो आयुर्वेद ने बहुत पहले डिसिप्लिन को अपने आप में एक मल्टीविटामिन कहा है फॉर द सोल एंड द बॉडी। इसीलिए कहते हैं इंद्रियों को वश में रखो, वो भी डिसिप्लिन है। वश में रखो मतलब जंक फूड मत खाओ, कंट्रोल रखो, क्लीन रखो, ऑल दैट। तो those who want to keep in touch, मेरे को लिखिए, feel free to ask me the questions, I'll be more than happy to answer। तो और कोई बात हो तो सब करेंगे। नमस्ते सर। धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग हो तो मुझे कॉपी भेजिएगा। Yes sir, we have recorded this lecture. I will definitely send you the link.
Okay. Thank you, sir. ठीक है. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. My greetings Thanks. to all of you once again for patient hearing. Yeah. Thank you, It sir. is best to all the participants. They can leave now. Thank you.